So, welcome you all, honored congregation, on Sri Sri Chaitanya Charitamrita, Radha Parshab Srila Prabhupada and Vaishnavas around. We are in a position to understand the characteristic of Sri Chaitanya Mahaprabhu through the agency of the great devotee, Krishnadas Kaviraj Goswami. He is citing the references from Srimad Bhagavatam to make sure the subject matter doesn't become independent, but rather following the Srimad Bhagavatam. Today we will be taking text 87 onwards. वृद्धार्थ कहे तुम्ही कहते कर रोषा तोमार अर्थे अभिमिश्र विधेयाम स दोष वृद्धार्थे कहे तुम्ही कहते कर रोषा तोमार अर्थे अभिमिश्र विधेयाम स दोष वृद्धार्थ कहे तुम्ही कहते कर रोष तोमार अर्थे अविमिश्र विधेयम स दोष. Synonym by Srila Prabhupada. वृद्ध अर्थ, contrary meaning, कहा say, तुम्ही you, कहते pointing out, kara you do, rosha anger, तुम्हारा your, अर्थे in the meaning, avimrishta vidheya amsa of the unconsidered predicates portion, dosa the fault. Translation by Srila Prabhupada. You say something contradictory and become angry when this is pointed out. Your explanation has the defect of a misplaced predicate. This is an unconsidered adjustment. Uma jnana timirandasya jnananjan salakaya chakshmantamenam tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Mano Vaishnava Sthapitamena Bhutale Swayam Rupakata Mayam Dadati Supadantikam Bandeham Sri Guru Shada Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vidantam Sajiva Sadvaitam Sabadutam Prajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapti Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanasute Devi Pranamami Hari Priye Vangsha Kalpataru Vesha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishthabhutale Srimati Jayapataga Samaniti Namine Namo Acharya Padaya Nitaya Kripa Vardayane Gaurgatha Damadaya Nagar Gram Tarane Namo Vishnu Padaya Krishna Vishthabhutale Srimati Bhakti Vedanta Samaniti Namine Namaste Saraswati Devi Gaurvani Parcharini Nirvishesha Sunyavadi Pashad Desatarane. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So text 87, Prabhupada is saying, or rather Krishnadas Kaviraj Goswami is saying, you say something contradictory and become angry when this is pointed out. Your explanation has the defect of a misplaced predicate. This is an unconsidered adjustment. क्या बता रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं, ये लोगों की धारणाएं हैं, ये लोग समझ बैठे हैं कि भगवान कृष्ण नारायण से आते हैं, जबकि नारायण भगवान कृष्ण से आते हैं. तो गलती क्या है? किसी बेटे को कहो कि बाप तुम्हारा अंश है, ये गलत है, सर्वथा गलत है. हाँ, बेटा
बाप का अंश हो सकता है, लेकिन पिताजी बेटे के अंश कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं जब आपके डिफेक्ट हम पॉइंट आउट करते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप समझ नहीं पा रहे कि सही पोजीशन क्या है। तो कैसे मालूम कौन सही कौन गलत है? शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा ना। जब भगवान कृष्ण कह दिया पिता हमसे जगत माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार ऋक्साम विजय, भगवान ने तो कह दिया ना। तो उसमें दूसरी कंडीशन की बात कहां से आ गई? ये कैसे कह सकते हैं कृष्ण को छोड़कर कोई और बड़ा है? भगवान स्वयं ने कहा है, नारायण ने तो नहीं कहा, ब्रह्मा जी ने तो नहीं कहा, शिव जी ने तो नहीं कहा। जब भगवान कह रहे हैं फिर भी आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो अवतार है, नारायण ही अवतारी हैं, तो कह रहे हैं आप गलत हो, हम आपको जो सही रास्ता दिखाना चाहते हैं तो आप गलत कहते हैं। पयपान भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम उपदेशो ये मूर्खा नाम पर कोपो न शांत। जिस प्रकार कहा जाता है कि सर्प को कितना भी दूध क्यों न पिलाया जाए, उसके शरीर में विष ही बढ़ेगा, कुछ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार उपदेशो ही मूर्खा नाम, जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, जो मिथ्या अहंकार में जीते हैं, उनको अगर आप समझाएंगे सुनाएंगे तो उनका प्रकोप बढ़ेगा, वो शांत नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं योर एक्सप्लेनेशन इज डिफेक्ट एंड इफ यू पॉइंट आउट यू गेट एंग्री। व्हाई इज दैट? हम कोई अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं, हम शास्त्रों को उदाहरण दे रहे हैं। शास्त्र में कहा गया है। अब जब ब्रह्मा जो पिता है सृष्टि के, जो दादा है, वो कह रहे हैं ईश्वरा परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। और शिव जी ने कहा आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी समीक्षणम। ये आराधना में सबसे बड़ी आराधना है विष्णु भगवान की, लेकिन उससे बड़ी आराधना है उनकी जो भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं। अब क्या क्या जा सकता है? शास्त्रों का ये कथन है, हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं मैं नहीं मानता। तो आपको नहीं मानने से क्या सूरज उगना बंद हो जाएगा? हवा चलनी बंद हो जाएगी? तारों की रोशनी समाप्त हो जाएगी? क्या हो जाएगा? अब न माने तो न माने। भगवान कृष्णा भगवत गीता में एक बार नहीं कई बार ये संदेश दे दिया है कि मैं हूं सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का मैं ही ईश्वर हूं, मैं हूं। ये एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारे व्याकुलम लोके मृदयन्ते युगे युगे। या भगवान ने कहा था यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजामि हम या परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये और जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। या भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामायान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। इतने भगवान ने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, बड़े बड़े वैष्णव की इस पर कमेंट्रियां हैं, उनके उल्लेख हैं, उनके उद्गार हैं, उनकी धारणाएं हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं, आप उनकी बात को न मानकर नहीं नहीं मैं नहीं मानता, मत मानिए।
क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन कृष्णदास कबीरदास कहते हैं, देखिए हम तो सच बता रहे हैं अब आपकी मर्जी, आप जाने तो जाने, समझने की कोशिश तो कीजिए, नहीं तो अपने अपना कार्य कर दिया। परमार्थ के कारणे साधु धर्यो शरीर, साधु का जो शरीर है वो परमार्थ के लिए है। अब उस परमार्थ को लोग माने, समझें, अनुकरण करें, अनुसरण करें तो करें, ना करें तो साधु ने अपना काम पूरा कर दिया है। जैसे हवा बहती है, आपने सांस ली तो ऑक्सीजन बन जाता है, आपने सांस छोड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। अब आपकी मर्जी है, आप जो है धुएं के सांस लें या स्वच्छंद हवा में सांस लें, ये हमारे ऊपर है। आगे टेक्स्ट 88, यानार भगवत हाइते अन्येर भगवत स्वयं भगवान शब्देर ताहा एते सत्ता। मैं सीधा ट्रांस में जाऊंगा। ओनली द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, द सोर्स ऑफ ऑल डिविनिटीज, is eligible to be designated स्वयं भगवान or the primeval Lord। कितने जो अवतारी है उसी को तो हम भगवान कहेंगे, उसी को स्वयं भगवान कहेंगे, उसी को तो भगवान का दर्जा दिया जाएगा, उसी को तो हम प्राइमेबल लॉर्ड बोलेंगे। ये किसी को बोल सकते हैं? जैसे हमारे देश में आजकल भगवानों की बाढ़ आ रखी है। कोई अपने आप को कृष्ण बताता है, कोई आपको अपने आप को कल्कि बताता है, कोई अपने को सिद्ध देवता बनाता है, कोई अपने आप को हनुमान बनाता है, बताता है, कोई अपने आप को भगवान श्री राम बताता है। अनेक धारणा है, क्या किया जा सकता है। लेकिन हमें परख होनी चाहिए कि भगवान कौन है। जिसके पास सर्वेश्वर है वही भगवान है, जिसके पास सर्वेश्वर नहीं, भगवान थोड़ी है। मुंह के बोलने से थोड़ी हो जाता है। मैं दिन भर चिल्लाऊं कि मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति हूं, तो आदमी करोड़पति थोड़ी बन जाता है। बोलने से क्या होता है? कुछ भी बोलने से अगर आदमी बन जाए तो फिर भगवान की जरूरत कहां पड़ेगी? मुंह से बोलो काम हो गया, भगवान को रखो अपने बैक पॉकेट में। तो ओनली ही हु द पर्सनालिटी इज द डिविनिटी, द सोर्स ऑफ डिविनिटी इज कैन बी कॉल्ड द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड और द प्राइमेबल लॉर्ड। बाकी सब गलत, समय का नष्ट होना। आगे टेक्स्ट 89, दीप है ते याचे बहु दीपेर ज्वलन, मूल एक दीप करिए गणना। When from one candle many others are lit, I consider that one the original। अब सब तो ओरिजिनल हो नहीं सकती। अभी बात अलग है कि 50-60 कैंडल हो और 50-60 आदमियों ने अलग अलग कैंडल जलाए, लेकिन उन सब में कोई एक कैंडल तो ओरिजिनल होगी, और ओरिजिनल कैंडल है भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब जलती हैं, वही रोशनी देती हैं, कार्य वही करेंगे, लेकिन उन सब में एक मूल है और बाकी उसके प्रतिरूप है। माना हमारा कोई वंशज हो, हम जिसके वंशज हो, हमारे दादे अलग अलग हो सकते हैं, परदादे अलग हो सकते हैं, और माएँ अलग हो सकती हैं, चाची ताई अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर पीछे करके जाएं तो एक तो मूल मिलेगा। और हमारा मूल क्या मिलेगा? हम किसी न किसी प्रजापति की औलाद हैं। एक मूल, उन प्रजापतियों के श्रेष्ठा ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के श्रेष्ठा कारण दाक्षाई विष्णु या क्षीरोदाक्षाई विष्णु,
या गर्भदाक्ष है विष्णु, और उनके पिता भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार हमारा जो वंशज है भगवान श्री कृष्ण चला आ रहा है, और आज भी हम उसी वंशज से हैं। हम सभी अच्युत गोत्र से हैं। प्रजापति के द्वारा गोत्र अलग हो गया तो बात अलग है, वरना है तो सब अच्युत गोत्र। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इतने जितनी भी कैंडल हैं, जितने भी दीप हैं, उनमें एक ओरिजिनल है। अभी हमने कार्तिक महोत्सव समाप्त किया, आपने देखो हमें कई दीपक बत्ती बना करके हमने जो है अपने मंदिरों में रखे रहते हैं, लेकिन जब माचिस जलाते हैं उनमें एक ओरिजिनल है, बाकी सब प्रतिरूप है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि वन इज ओरिजिनल। प्रभुपाद जी लिखते हैं चैप्टर उसमें परपोर्ट में, इन ब्रह्म संहिता चैप्टर 5 टेक्स्ट 46 स्टेट दैट विष्णु तत्व और द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ personality of Godhead is like a lamp, because the expansion equal their origin in all respect. A burning lamp can light any number of the lamps, and although they will not be inferior, still the lamp from which the others are lit must be considered the original. Similarly, the Supreme Personality of Godhead expand himself in the planetary forms of Vishnu Tattva, and although they are equally powerful and original, powerful personality of Godhead is considered the source. This example also explains the appearance of qualitative incarnations like Lord Shiva and Lord Brahma. According to Srila Jiva Goswami, Sambho Sadhu Tamo Distan Tatvat Kinjalamaya Shukshama Deepa Shikha Asthaniyasya Na Tatha Swayam. The Sambhu Tattva, or the principal Lord Shiva, is like a lamp covered with carbon because it is being in charge of the mode of ignorance. The illumination from such a lamp is very minute. Therefore, the power of Lord Shiva cannot compare to that of Vishnu principle. No more explanation. All said and done. Text 90. तैथे सब अवतारेर कृष्ण से ही कारण, आर एक श्लोक सुना कुव्याख्या Kadandana. Krishna, in the same way, is the cause of all causes and all incarnation. Please hear another verse to defeat all misinterpretation. लॉर्ड ब्रह्मा जी को जब भगवान से बात करनी होती है तो क्षीर सागर के पास जाते हैं। वहां कभी विष्णु से कभी नारायण से उनकी बात हो जाती है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर आए, उन्होंने भगवान की बाल लीलाएं देखी, उनको भी शक हो गया, यार जो बाल लीला कर रहा है, ग्वालों का जूठा खा रहा है, गायें चरा रहा है, ये क्या भगवान हो सकता है? अरे भगवान क्यों करके गाय चराएं भाई? वो तो राजाधिराज हैं। तो जब उनको ये कल्पना हुई कि लीजिए इस भगवान का टेस्ट लिया जाए, और जब उन्होंने भगवान के बछड़ों को, ग्वाल बालों को, सबको उन्होंने जो है छुपा दिया अपनी शक्ति के द्वारा, और एक क्षण में लौटे। उनका एक क्षण मृतलोक के 1 साल के बराबर था। लौट के आके देखते हैं, वही सीनरी है। भगवान वो सब जो ग्वाल वाले हैं,
जो गाय के बछड़े हैं, जिन्होंने कहीं छुपा दिए थे, उनके साथ वही क्रीड़ा कर रहे हैं, वही लीला कर रहे हैं। इस वो असमंजस हो गया, फौरन भाग के गए जहां छुपा के रखा था, और देखा वो सारे के सारे वही सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। फिर इधर आके देखा, ये सब तो काम कर रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घास खा रहे हैं, कुछ कर रहा है, खेल रहे हैं। वहां देखो, जब उन्होंने इधर उधर जाके कई बार देखा, तो उनको पता चला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जब ब्रह्मा जी को ये बोध हुआ कि ये भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है, तो नतमस्तक हो गए, भगवान की प्रार्थना की, भगवान की आराधना की, अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और भगवान से कहा, मेरी अल्प बुद्धि से मैंने ऐसे किया, मुझे ऐसे करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन किसकी प्रेरणा मुझे नहीं मालूम, हो सकता आपकी प्रेरणा हो कि मैं असमंजस में पड़ गया और आज आपका असली रूप देखा। ठीक नारद मुनि भी इसी प्रकार, जब उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों के लिए महल तैयार किए और अब वो जो है द्वारका में निवास करते हैं, तो उनको उत्सुकता हुई कि जाके देखो तो सही भगवान के क्या करा कार्यकलाप है। उन्होंने भगवान को देखा, किसी महल में भगवान कुछ कर रहे हैं, किसी में कुछ कर रहे हैं, किसी में कुछ कर रहे हैं। नारद हामते हामते जब सब महलों में गए, भगवान की जो कार्यकलाप है अलग अलग जगह थे। जैसे भगवान ने कहा है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। वेति का मतलब तो जानना। कैसे जानना? गुरु परंपरा शिष्य के अनुसार जानना, वेति तत्वतः, क्योंकि तत्व है, ये हमारे दिल में उजागर नहीं होगा, इसी को हमें समझाना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, व्यवहारिक ढंग से समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अल्प बुद्धि वाले हैं। हम कैसे इसको समझ पाए? नाउ अगले श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण करेंगे श्रीमद् भागवतम का। उसके लिए समय न होगा पढ़ने के लिए, बहुत लंबा श्लोक है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कल परसों से हम काफी चर्चा कर रहे हैं कि भगवान से मांगे न मांगे, बिना मांगे काम नहीं चलेगा, मांगे तो भगवान देते नहीं है। तो हम तो दुविधा में पड़ गए, मांगने की इच्छा भी होती है, ये मालूम है कि भगवान देंगे भी नहीं, फिर भी मांगना पड़ता है। हम कई महीनों से ध्रुव चरित्र सुन रहे हैं। ध्रुव जी ने भी भगवान से मांगा, भौतिक वस्तु मांगी, और भगवान ने उनको भौतिक वस्तु दी, लेकिन उसमें वो अटैच नहीं हुए। भगवान ने कहा राज करो, उन्होंने राज्य किया, लेकिन उसमें अटैच नहीं हुए। लेकिन फिर भगवान ने सोचा कि नहीं, टेस्ट तो करें, ये भौतिकता से अटैच है कि नहीं है। उनके भाई उत्तम का गुह्यकों से झगड़ा हो गया, गुह्यकों ने उसको मार दिया। अब ध्रुव महाराज को बड़ा गुस्सा आया, अच्छा, मैं राजा होते हुए भी मेरी अवज्ञा हुई है, मेरे भाई को मार दिया गया, उन्होंने भी हजारों गुह्यकों को मारना शुरू कर दिया। तो तब वही नारद आते हैं। कौन नारद? जो बचपन में उनको शिक्षा दिया था, किसकी? भगवान के परायण होने की। बोलेंगे ये ध्रुव, ये क्या है? जो भगवान के परायण हो जाता है, वो समझता है, वो जानता है कि सारा किया कराया भगवान का है,
हम सब निमित्त मात्र हैं। तुमने ये जो कार्य किया ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि भगवान की इच्छा है तो काम होगा, भगवान की इच्छा तो काम नहीं होगा। 8 p.m. तो इस प्रकार हम सब भी कई सालों से भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। समझ भी लिया है, जान भी लिया है, किताबों के उदाहरण हमारे सामने भी हैं, कई वैष्णव से प्रवचन भी सुन लिया है, कभी कभार हमारे दिमाग में ये बात भी आती है, लेकिन जब वो जरूरत होती है हम तभी भगवान को भूल जाते हैं। वरना याद है, आज हमारे पास सुख है, संपदा है, समय है, साधन है, तो आज हम भगवान को कई बार याद कर लेते हैं। लेकिन जब घड़ी आती है याद करने की, हम तब भगवान को भूल जाते हैं। इसका मकसद ये है कि हमारी जो अभी दशा है, अभी पक्व कषायाणा, अभी हमारी जो डिवोशन है वो अनराइपन है। देखो, जो मैंगो होता है, मैंगो तो मैंगो होता है, लेकिन उसका स्वाद हरे में अलग और पीले में अलग, दोनों मैंगो, उसके अंदर से कुछ नहीं निकला। एक अभिपक्व कषायाणाम है, एक परिपक्व हो चुका है। तो हमारी भक्ति भी अभिपक्व कषायाणाम है। हम इस मैंगो की तरह हैं तो मैंगो, लेकिन जब भी खाएंगे तो खट्टा नजर आएगा, मीठा नहीं आएगा। मीठे के लिए निगम गल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद दर्व संयुतम पिबतम भागमतम रसमालयम मुहुरसो रसिका भुवि भाविका। हमें समझ चुके हैं कि नाम संकीर्तन के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन जब कभी हमें कीर्तन करने का मौका मिलता है तब वही 10-15 मिनट लेट पहुंचते हैं। मौका है कीर्तन करने का, लेकिन 10-15 मिनट लेट। क्यों? हमारी अनुभूति नहीं बनी है, हमारी अनुभूति नहीं बनी है। और जिस दिन अनुभूति बन जाएगी, हम कहां भी हों, किसी परिस्थिति में हों, किसी जगह क्यों न हो, हम तो भगवान के नाम का उच्चारण और कीर्तन करते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न करता है कि प्रभु जी, कैसे हम, जब हम ऑफिस में बैठे हैं, कैसे ये कीर्तन कर सकते हैं? हमने कहा, मन में करो ना। जो सामने तुम्हारे बैठा है वो कौन से तुम्हारे मन की बात को पढ़ रहा होगा? कौन सी उसके अंदर दिव्य दृष्टि आके पढ़ रहे कि आप अपने मन में क्या बोल रहे हैं? आप मन में बोलिए। तो सीताराम 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 कहिए, जे विधि राखे राम से विधि रहिए। अभी तक हम सब भगवान के भरोसे नहीं है। हम सब आजकल जो यहाँ हैं वो रियाल के भरोसे हैं, जो अमेरिका में है वो डॉलर के भरोसे हैं, जो यूरोप में है वो यूरो के भरोसे हैं, जो इंडिया में है वो रुपए के भरोसे में है, जो चाइना में वो रूबल के भरोसे में है। हमारा भरोसा भगवान के नाम मात्र का है, हमारा भरोसा भगवान पे नहीं है। कैसे भरोसा नहीं है? अगर कल हमारे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो सबसे पहले हम ब्लेम भगवान को करेंगे। हमने कभी भगवान को धन्यवाद नहीं दिया होगा कि कतर में हमको 20-30 साल हो गए, ये प्रभु आपकी दया से अब सब कुछ है, सब कुछ है, धन्यवाद नहीं देंगे। लेकिन कंप्लेन हमेशा कि बस 1 साल का वीजा और लग जाए तो मजा आ जाए।
नहीं, मैं तब लेके बोल रहा हूँ, मैं आपको 10 साल का वीजा लगेगा ना प्रभु, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम भक्ति करेंगे। जब कानों से सुनाई नहीं देगा, मुंह से बोला नहीं जाएगा, खाना हजम नहीं होगा, तब हम भक्ति करेंगे बैठ करके। तो इतना दृढ़ विश्वास है हमारे भगवान के ऊपर कि सबके साथ तो हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा होना नहीं है। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम। ये यक्ष का प्रश्न है युधिष्ठिर महाराज के लिए कि सबसे अचंभित चीज क्या है दुनिया में। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम। हे यक्षवर, हमारे सामने हजारों लाखों शरीर, चाहे मनुष्य के हो, कीट हो, पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, दैव हो, दानव हो, ये सब जो है हिमालय में चले गए हैं, लेकिन हमें लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। इससे ज्यादा विचित्र और चीज क्या हो सकती है? ये विचित्र चीज है। हम समझते हैं हम पैसे खर्च करके अपना जीवन जो है बचा सकते हैं। आज पता चला कि कुवैत का जो अमीर था, जो शेख था अल सवा, आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। कितना धन धान्य उसके पास होगा, खरबों का मालिक होगा, लेकिन मृत्यु सर्वहरशाहम। ये मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है। मृत्यु संसार सागर। तो आइए हमें जाग जाएं। जो हमारी निंद्रा है, वो है ना श्लोका भक्ति विनोद ठाकुर का, जीव जागो जीव जागो जीव जागो, चांद गौरा चंद्र बोले, कठो निद्र जाओ माया पिशाची रघोले। अगर आज हमने भक्ति नहीं की तो कल का भरोसा नहीं है कि हम सुबह करेंगे, सुबह उठेंगे, सुबह मैं भागवतम पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और उठ ना पाई तो इसलिए आज ही कर डालो। हरे कृष्ण। लीजिए, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगला जो श्लोक होगा वो बड़ा लंबा श्लोक है, तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, काफी उस पर चर्चा भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपने उद्गार के द्वारा भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति कुछ अपनी संवेदना व्यक्त कर सकूं। हरे कृष्णा।